Hello, my dear students. Hope you are all fit and fine. Today we will learn ledger posting. Here is an example, and different business transactions are given in this example. First, we have to pass the journal entries for these transactions because, as you know, journal is a book of original entry, and from journal we will post the entries to ledger. These entries are given. These transactions they will be posted into journal. Here are the journal entries. First was commenced business with cash. So a journal entry will be cash account debited to capital account. Then other entry is deposited in bank. Cash is deposited in bank. Bank account debited to cash account. Purchases account debited to cash account. Bought goods for cash. Bablu's account debited to sales account. Sold goods to Bablu on credit. Purchases account to Gautam's account. Bought goods from Gautam. Cash account debited. Discount allowed debited to Bablu's account. Received cash from Bablu and discount allowed. Gautam's account to cash account to discount received account. Cash account to sales account. Drawings account to cash account. Cash drawn for personal use. Cash account debited to Bablu's account. Received cash from Bablu. Then bank account to cash account. Cash received from Bablu was deposited in bank. Rent account debited to cash account. Rent paid 1750. Gautam's account debited to cash account. Paid cash to Gautam in full settlement of account. Carriage account debited to cash account. Paid carriage rupees 400. Now we have to post these journal entries into ledger. We have already done the format of ledger, how a ledger account looks like. So we will start posting journal entries to various ledger accounts. We will start ledger posting. Here is the cash account, capital account. Different accounts are being drawn. Columns you already know: date, particulars, journal folio, amount in rupees. This all are on debit side. So you will write debit. On this side and credit on right side. In all the accounts you have to write debit and credit side. Columns are date, particulars, journal folio and amount for debit side, and for credit side also date, particulars, journal folio and amount. We have drawn various accounts: cash account, capital account, bank account. Format is the same. We have given names of accounts which are being used in the journal. जर्नल में जो भी अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज में आए हैं वो वाले अकाउंट्स हमने यहाँ पे पहले से ही बना के रख लिए हैं, सो दैट वी कैन सेव द टाइम. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ड्राइंग्स अकाउंट, कैरेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, जितने भी अकाउंट यहाँ पे आए हैं वो हमने सारे पहले ही ड्रॉ करके रख लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज. अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है. जो ऊपर लिखा होगा, जो अकाउंट डेबिट होगा वो क्या होगा, उस अकाउंट में हम एंट्री करेंगे. लेट्स सी. एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट.
ये आ गया हमारे पास कैश अकाउंट डेबिटेड टू, डेबिट करना है, डेट थी हमारे पास जनवरी 1 2020 ईयर चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या था, कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो इसको हमने पोस्ट कैसे किया, कैश अकाउंट तो पहले ही ऑलरेडी है, डेबिट साइड पे लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जर्नल फोलियो आ जाएगा। अमाउंट थी हमारी 1 लाख रुपीस। क्लियर। ये अब हमारी जो जर्नल एंट्री थी वो लेजर में कन्वर्ट होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बट जो जर्नल एंट्री है उसके दोनों एस्पेक्ट्स को हमने लेजर में पोस्ट करना है, तो जो कैपिटल अकाउंट है उसमें भी इसकी एंट्री आएगी, ताकि दोनों जो साइड्स है डुअल एस्पेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड पर लिखा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे हम, पहले डेबिट और क्रेडिट डाल लें यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, वही आ जाएगी हमारी जनवरी 1। अब यहाँ पे हमने लिखना है बाय कैश अकाउंट, जो अकाउंट डेबिट हुआ था। अमाउंट सेम आ जाएगी हमारी 1 लाख रुपीस। लिसन अगेन, एंट्री वॉज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो एक हमारे पास कैश अकाउंट है, एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है, डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। जो जनरल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट में एंट्री होगी डेबिट साइड पे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी और क्या लिखा जाएगा, बाय कैश अकाउंट 1 लाख। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी जनरल एंट्री है उसकी बोथ साइड्स की एंट्री होनी ज़रूरी है। लेजर अकाउंट में 2 अकाउंट होंगे या 3 अकाउंट होंगे इन केस ऑफ कंपाउंड एंट्री, तो वो तीनों अकाउंट्स में उनकी एंट्री होनी मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 75,000। एंट्री क्या थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेट वाज जनवरी 2, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट वाज 75,000। दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, डेट आ जाएगी जनवरी 2। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 75,000। वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड 2 एंट्रीज, सो आप पेंसिल से इसको टिक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिए ताकि हमें पता लगता रहे कि ये दोनों एस्पेक्ट हम कर चुके हैं। यहाँ पे भी स्टार लग गया, नेक्स्ट जर्नल एंट्री भी हम पोस्ट कर चुके। याद रखना है कि 2 अकाउंट्स में जाएगी, जर्नल एंट्री जो है वो 2 अकाउंट्स में जाएगी। तो साथ के साथ आप डेबिट और क्रेडिट दोनों पर भी टिक लगा सकते हो।
ताकि बाद में बैलेंसिंग में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। थर्ड एंट्री है परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। 5 जनवरी को परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। एंट्री थी हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम परचेजेज अकाउंट को पहले डेबिट कर लेंगे। फिफ्थ जनवरी परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी हमारी 12,500। अब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 5 जनवरी बाय परचेजेज अकाउंट 12,500 आ जाएगा। 12,500। दिस वाज आवर थर्ड जर्नल एंट्री। नेक्स्ट इज बबलूज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। 7th जनवरी को 6,000 रुपीज की बबलूज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। एंट्री थी हमारी बबलूज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम बबलू अकाउंट को पहले डेबिट कर लेंगे। बबलूज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट थी हमारी 6,000। डेट थी जनवरी 7। अब क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे बाय बबलूज अकाउंट जनवरी 7 अमाउंट 6,000। Next entry is on 9th of January. Purchases account debited to Gautam's account for rupees 15,000. Bought goods from Gautam. गौतम से goods purchase किए हैं on credit। तो 9th जनवरी को एंट्री पास हुई है परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू गौतम्स अकाउंट। जर्नल एंट्री थी हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू गौतम्स अकाउंट। तो पहले परचेजेज अकाउंट देख लेंगे। नाइन्थ ऑफ जनवरी को हमने ट्रांजैक्शन की है तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेज अकाउंट में जनवरी 9th टू गौतम्स अकाउंट। अमाउंट थी हमारी 15,000। अब गौतम अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो गौतम के अकाउंट में भी एंट्री करेंगे ऑन क्रेडिट साइड। क्या आ जाएगा जनवरी 9 जनवरी 9 को एंट्री आ जाएगी हमारी बाय
परचेजेस अकाउंट, अमाउंट 15,000, साथ साथ आप टिक करते जाओगे बोथ साइड्स, तो कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके जब आपको पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्वेश्चन करना है ट्रायल बैलेंस तक या बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, तब कहीं गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। यहाँ पे हमारे 9 जनवरी तक की एंट्रीज कर ली, तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू बबलूज अकाउंट। 12 जनवरी को हमने जर्नल एंट्री पास की है। कैश अकाउंट डेबिटेड 4,900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज टू बबलूज अकाउंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बबलू एंड डिस्काउंट अलाउड। बबलू से हमने 4,900 लिए हैं और 100 रुपीज का उसको डिस्काउंट दिया है, तो इनको हम पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में और बबलूज अकाउंट में। एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू बबलूज अकाउंट, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है टू बबलूज अकाउंट। डेट डाल देंगे 12 जनवरी, टू बबलूज अकाउंट। कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा था? 4,900 से, तो यहाँ पे भी अमाउंट क्या आ जाएगी आपकी 4,900। एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू बबलूज अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया, अब हम करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये आ गया हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 12 जनवरी को January 12th debited to Bablu's account। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी थी? 100 रुपीज। अब रह गया बबलूज अकाउंट। पहले क्या थी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू बबलूज अकाउंट। कैश अकाउंट में भी हमने एंट्री कर दी, डिस्काउंट अलाउड में भी कर दी, अब हम करेंगे बबलू के अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय, दोनों अकाउंट्स के नाम आएंगे, क्योंकि बबलू का अकाउंट हमने क्रेडिट करना है 5,000 से, तो एक तो बाय क्या आ गया? कैश अकाउंट। कैश रिसीव किया हमने 4,900 का, जनवरी 12 को। एक क्या आ जाएगा? बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितनी आ जाएगी अमाउंट? 100 रुपीज। अब यहाँ से देखो हमें पता लगेगा कि हमने इस टाइम पे अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से हमें अमाउंट पता लग जाएगी कि बबलू से इस टाइम हमें कितनी अमाउंट लेनी है। सेल की थी उसको 6,000 की, कैश रिसीव हो गया 4,900 का, डिस्काउंट अलाउ कर दिया 100 रुपीज़। इट मीन्स कि 5,000 का जो हिसाब किताब है वो हो चुका है। वी हैव रिसीव्ड फॉर 5,100 रुपीज़ उसको डिस्काउंट देके, तो बैलेंस कितना रह गया उसका? 1,000 रुपीज़। बबलू के अकाउंट से अब हमने बबलू से कितने लेने हैं? 1,000 रुपीज़।
नेक्स्ट एंट्री है हमारी गौतम्स अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। गौतम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, पेड कैश टू गौतम एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। गौतम को हमने कैश पे किया और हम उससे हमें डिस्काउंट मिला 500 रुपीज़ का। अब ये एंट्री भी कहाँ जाएगी, तीनों अकाउंट्स में जाएगी, गौतम के अकाउंट में, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। एंट्री थी हमारी गौतम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जनवरी 13 को गौतम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। $9,500 और कैश मिला हमें 9,500, डिस्काउंट मिला हमें 500 रुपीज़ का। गौतम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हमने एंट्री करनी है एक तो कैश अकाउंट में, एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में पहले एंट्री कर लेते हैं। बाय गौतम्स अकाउंट। जनवरी 13 कैश कितना रिसीव हुआ था, 9,500। गौतम्स अकाउंट के सामने लिख देंगे। और था हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगी हमारी एंट्री जनवरी 13 को क्रेडिट हो रहा था अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे आएगी। बाय किसको दिया हमने, गौतम्स अकाउंट। कितनी थी अमाउंट, 500 रुपीज़ की। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 14 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 7,800। एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट। डेट डाल देंगे जनवरी 14, राइट इन फ्रंट ऑफ द एंट्री। कितनी थी, 7,800। अमाउंट वाज 7,800। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डालेंगे बाय कैश अकाउंट। कौन सी डेट को हुई है ट्रांजैक्शन, जनवरी 14। अमाउंट वाज 7,800।
7,800। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ऑन 16th जनवरी, कैश वॉज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2000। अब इसको हम लेके जाएंगे एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में, एक कैश अकाउंट में। एंट्री थी हमारी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो पहले ड्रॉइंग अकाउंट में कर लेते हैं। दिस इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेट was 16th January, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। कैश अकाउंट में एंट्री डाल देते हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ऑन January 16 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट 2000 रुपीज। क्या हो गया हमारा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया ड्रॉइंग्स अकाउंट से। नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारी ऑन 19th जनवरी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बबलूज अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बबलू 1000 रुपीज। तो इसमें हम कैश अकाउंट में लेके जाएंगे और एक बबलू के अकाउंट में लेके जाएंगे। एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बबलूज अकाउंट ऑन 19th जनवरी। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हम डेबिट साइड पे एंट्री कर देंगे, पुटिंग डेट फर्स्ट, टू बबलूज अकाउंट। ₹1000। ₹1000 यहाँ पे लिख देंगे। 19 जनवरी को क्या थी हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बबलूज अकाउंट 1000 रुपीज। अब बबलू के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट January 19, 1000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है जो कैश बबलू से रिसीव हुआ था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1000 ऑन 19th जनवरी। एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट को पहले डेबिट कर लेते हैं। ऑन 19th जनवरी टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में इसकी एंट्री डाल देते हैं, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। January 19,
कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट अमाउंट थी हमारी 1000 रुपीज। 1000। Next entry is on 21st of January, paid rent rupees 1750, 1750. So entry becomes rent account debited to cash account. Entry was rent account debited to cash account. कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे जनवरी 21st by rent account. Amount is 1750. रेंट अकाउंट में डाल देंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेट was 21st January. Amount was 1750 rupees. नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारी पेड कैश टू गौतम इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब ये हमें गौतम के अकाउंट से पता लगेगा कि उससे कितनी अमाउंट हमने लेनी थी, कितनी हम रिसीव कर रहे हैं। अगर सपोज उसके अकाउंट से हमें पता लगे कि 5100 लेने थे तो वो 100 रुपीज डिस्काउंट में जाएंगे। तो पहले हम गौतम का अकाउंट देखेंगे उसमें कितना बैलेंस है, फिर वो एंट्री यहाँ पे पास हुई ऑन 27th ऑफ जनवरी। हेयर कम्स गौतम्स अकाउंट। गौतम के अकाउंट में देखो डेबिट साइड पे है 9500 प्लस 500 इट मीन्स 10,000 रुपीज और क्रेडिट साइड पे है 15,000 रुपीज। तो बैलेंस करेंगे इट मीन्स कि 5,000 रुपीज जो है वो बैलेंस है। हमारे पास जो एंट्री थी वो क्या थी, गौतम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज की। इट मीन्स कि 5,000 ही हमने उससे लेना था। यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। डेट was January 27। अमाउंट क्या है हमारी 5,000 बैलेंस है क्योंकि उन्होंने कहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता तो बाकी का हम डिस्काउंट में डाल देते। अब करना है हमें कैश अकाउंट को क्रेडिट। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डालेंगे जनवरी 27th बाय कहाँ से आया, गौतम से, गौतम्स अकाउंट। कितनी अमाउंट रिसीव हुई है 5,000 rupees। Last entry is on 31st of January, carriage account debited to cash account 400 rupees। As you all know expenses are always debited, तो यहाँ पे भी हमने डेबिट किए हुए हैं। carriage is an expense, carriage account में जाएगा एक
कैश अकाउंट में जाएगा। तो 31 जनवरी को हम कैरेज अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों में डालेंगे 400 रुपीज़। ये आ गया हमारा कैरेज अकाउंट। तो एंट्री थी हमारी कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पे डेट डाल देंगे जनवरी 31, कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी थी 400 रुपीज़। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेट्स गो टू द कैश अकाउंट। बाय कैरेज अकाउंट 31 जनवरी को क्या आ जाएगा, बाय कैरेज अकाउंट 400 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लेजर बनाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। अगर हम जर्नल में देखते तो हमें कैश की जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी पता नहीं लगनी थी। इतनी सारी एंट्रीज होगी इन्वॉल्विंग कैश कि कितना कैश आया कितना गया। अगर इस टाइम हमने देखना हो कि कितना बैलेंस है, वी कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कैश अकाउंट। When we will learn the balancing of accounts, then we will see how to see the balance in every account. तो यहाँ पे सारी हमारी रिसीट्स आ गई जहाँ जहाँ से हमें अमाउंट रिसीव हुई थी। ये जो हमने सारी पेमेंट्स की थी ये सारी इस साइड पर आ गई, हमारी क्रेडिट साइड पर। That's it for today students. Keep practicing.